fire. Oh na, oh na na, oh ya na. Lift your spirit, take it higher. From Lagos to Nairobi, feel the love, it's all around. Colors bright, the sun is shining. Hear the music, catch the sound. Every step, the earth is calling. Every beat, we're moving strong. Let the rhythm take you deeper. Dance until the break of dawn. Oh, can you feel it now? Feel it now, feel it now. Oh, let it take you out, take you out. Oh, hear the drums alive, drums alive. Oh, time to rise and vibe. Rise and vibe, let your soul ignite. Feel the groove, let's dance tonight. Shake the ground, feel the world unite. Oh yeah, rise and vibe, will shine so bright. Rise and vibe, let your spirit fly. Feel the love lifted to the sky. Move your body, let the rhythm guide. Oh yeah, rise and vibe, this is our time. Oh yeah, yeah. Feel the rhythm, don't delay. Oh yeah, let's dance our fears away. Turn up the heat, feel the passion grow. From the streets to the shores, let the people know. We're one voice, one heart, one flame. Celebrate the vibe, call out your name. Life is short, so live it fully. Every moment, make it holy. The sun will set, but we'll keep shining. Together strong, forever binding. Let the beat control your soul. Feel the fire, lose control. Oh, let the music heal your pain. Dance away, no need to explain. Rise and vibe, let your soul ignite. Feel the groove, let's dance tonight. Shake the ground, feel the world unite. Oh yeah, rise and vibe, will shine so bright. Rise and vibe, let your spirit fly. Feel the love lifted to the sky. Move your body, let the rhythm guide. Oh yeah, rise and vibe, this is our time. Oh yeah, nah, oh yeah, nah. Feel the rhythm, feel the fire. Oh yeah, nah, oh yeah, nah. Lift your spirits, take it higher. Oh yeah, nah, oh yeah, nah. Feel the rhythm, feel the fire. Oh yeah, nah, oh yeah, nah, oh yeah, nah. Feel the rhythm, feel the fire. Oh yeah, nah, oh yeah, nah. Lift your spirit, take it higher. From Lagos to Nairobi, feel the love, it's all around. Colors bright, the sun is shining. Hear the music, catch the sound. Every step, the earth is calling. Every beat, we're moving strong. Let the rhythm take you deeper. Dance until the break of dawn. Oh, can सो हे गाइज, वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। ठीक है, एक सेकंड में देख लेते हैं सब कुछ ठीक है ना। तरड़म परड़म परड़म। तो स्वागत है दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप सभी का मेरे क्रिप्टो लाइव में। और एक सेकंड इसको काट देते हैं। ओके ठीक है, ये हो गया ठीक टक। उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, एवरीथिंग लुक गुड। बाकी आप बताओ ऑडियो सही है कि नहीं है। मैं तो इधर सुन ही रहा हूँ, बाकी लैग करे तो प्लीज़ बता देना, और ऑडियो में इशू हो तो बता देना, ठीक है। तो आज बहुत बहुत दिनों बाद आया हूँ एक्चुअली में, और रीज़न सिंपल है। मैंने आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं एक फंडेड अकाउंट परचेज़ करने वाला हूँ, और मैं लाइव में परचेज़ करना चाहता था। इसी वजह से मैं पहला बात तो थोड़ा शेड्यूल बिजी था, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। बट जो भी था मैं अपडेट दिया था अपने इंस्टा अकाउंट में। अगर आपने मेरा इंस्टा का अकाउंट फॉलो नहीं किया तो सिंपली इंस्टाग्राम में जाओ, ऑन चेन ट्रेडिंग मारो और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में, हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, फिर भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने डाल के रखा डिस्क्रिप्शन में, वैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
और हाँ, मैसेज वैसेज करना है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम इज़ बेस्ट। मैं वहीं पे स्टोरीज डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो एंड मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन, इथेरियम एंड हो सकेगा तो ऑल्ट कॉइन देखेंगे, और लाइव में एक फंडेड अकाउंट परचेज करेंगे, और जो भी है उसका अपडेट, फंडेड अकाउंट का अपडेट मैं इंस्टा में देते रहूँगा। साथ ही साथ लाइव जब भी आऊँगा, लाइव में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे फंडेड अकाउंट में, और होपफुली मैं फंडेड अकाउंट क्लियर करूँ और लाइव अकाउंट में ट्रेड करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक अगेन गाइस, एंड लेट्स सबसे पहले क्या करना है, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को आपको नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ऑन नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आप मोबाइल की स्क्रीन में मिल जाए। प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे मैं सबसे पहले अपना लिंक शेयर करता हूँ लाइव आने का, जहाँ से आप डायरेक्टली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, लाइव चैट में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई कॉइन है पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। फंडेड अकाउंट के बारे में मेरे को इतना जानकारी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर आप कुछ पूछते हैं तो मैं उसको आंसर आउट करने की। ठीक है, तो इंट्रो लगाते हैं, फटाफट स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, लेट्स गो। तो हालांकि बहुत, मैं एक्चुअली में पूरा 1 महीना मैंने रिसर्च किया फंडेड अकाउंट क्या है क्या नहीं है उसका, मतलब कौन सा फंडेड अकाउंट अच्छा है। अकॉर्डिंग टू मी मैं बता दूंगा मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा है, उसमें क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन सा वो भी बताऊंगा, कैसे परचेस करना वो हम लाइव में ही परचेस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम बिटकॉइन का फटाफट एक अपडेट देते हैं, क्योंकि मैंने अभी लाइव आने से पहले एक बढ़िया सा बड़ी टाइम फ्रेम में एक चीज़ देखा, जिसका मैं अपडेट आपको देने की कोशिश करूँगा। बुल रन में आपको टारगेट मिल सकता है होपफुली। ठीक है, तो चलिए सीन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन मैंने इथेरियम में एक ट्रेड बताया था इंस्टा में। ठीक है, इंस्टा का स्टोरी में मैंने एक ट्रेड बताया था, और हालांकि वो ट्रिगर नहीं हुआ, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बिटकॉइन का ये डेली टाइम फ्रेम है, वीकली में अगर ये देखते, वीकली को छोड़ दो, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम में सुंदर से ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सिर्फ पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब एक ये यहाँ पे अगर जाएंगे लाइन चार्ट में आपको ऐसा लाइन दिख जाएगा, और यहाँ पे अगर आप जाते हैं, मैं सिंपली एक चीज़ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सबसे पहले एक टच पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे टच पॉइंट आया, लेकिन इसने एक फेक आउट दिया, काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम बनाया, फिर ऊपर चला गया इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, मैं एक ऐसी मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फिर एडजस्ट करना चाहूँगा लाइन को इस तरीके से। ओके, ठीक है, उसके और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे भी टैप हुआ। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर भागा, और यहाँ पे भी टैप हुआ, यहाँ पे एक फेक आउट दिया। तो मेरे नज़र में 2 फेक आउट मुझे दिखे हैं, और फेक आउट को लेते हुए मैंने एक यहाँ पे टारगेट सेट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ बढ़िया से दिखाता हूँ, होपफुली आपको भी मज़ा आएगा देख के। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो फेक आउट देना, ये कहाँ पे इसने फेक आउट दिया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डबल टॉप समथिंग टाइप का, यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट का रीटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक फेक आउट दिया, तो लोगों को क्या लगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है। प्लस ये जो इस एरिया, ये दोनों एरिया का जो ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, उसका फिर से ब्रेकडाउन हुआ है, और उस ब्रेकडाउन को लेते हुए लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में भी शायद शॉर्ट किया होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसी आपके लिए एक बढ़िया से यहाँ पे इस तरीके से एरिया बना देता हूँ। ठीक है, तो इस एरिया का क्या हुआ, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन में मे भी बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा या फिर नहीं किया होगा। तो ये एक सिनेरियो है। उसके दूसरा सिनेरियो मैं दिखाता हूँ सिंपली, और एक दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, सेम पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, सेम पैटर्न। ठीक है, बट यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने इसको टैप नहीं किया है। हालांकि ये जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, ये गया वापस आया, इसने ट्रेंड लाइन को टैप किया, ट्रेंड लाइन को टैप करने के बाद वापस गया, वापस इसने क्या किया, एक फेक आउट दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव किया, और इसने ये जो डबल टॉप था इसको इसने ब्रेकआउट दिया, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी जो डबल टॉप था इसका ब्रेकआउट हुआ। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मेजरमेंट ले सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रह सकता है वो कितना रह सकता है। तो मैं इस फेक आउट के टैप पॉइंट से लेके मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो इसने टॉप बनाया था ना, यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, और इसको हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम पुट करेंगे इस एरिया में जहाँ से इसने ये टैप करके गया है। तो हमारा नेक्स्ट बुल सीज़न का जो टारगेट रहना चाहिए वो ऑलमोस्ट रहना चाहिए
2,20,000 के करीब है, मतलब 2,19,448 का एग्जैक्ट टारगेट है। तो यहाँ तक आप अपनी पोजीशन बुल रन में बना के रख सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है डेफिनेटली क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से एक एग्जिट पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बुल रन का टारगेट रहेगा 2,07,425 से लेकर 2,19,448 का टारगेट। हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं बढ़िया से जा रहा है ऊपर की तरफ। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमको मूव दिखा ना, अगर मैं इसको इससे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देख सकते हैं क्या, यहाँ से देखते हैं, चलो ब्रेकआउट पॉइंट से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मूव हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये जो है ना सेम मूव यहाँ से थोड़ा सा मतलब वो करना पड़ेगा, बट अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो ये ब्रेकआउट देके गया था, ब्रेकआउट देके गया, एक डाउन आया, एक डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर एक फॉल आया, काइंड ऑफ फॉल आ ही रहा है। ठीक है, अभी भी फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि नीचे इम्बैलेंसेस जोन है बिटकॉइन में, तो वो मे भी फुल हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ से रैली आया, तो एग्जैक्टली फिर यहाँ से एक रैली आने के चांसेस है। ऑलमोस्ट बुल रन का टारगेट मैंने जैसे कि कहा ये टारगेट रह सकता है। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम मतलब क्या, डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी वक्त लगता है इसको टाइम को मतलब इस टारगेट को फुलफिल होने में। तो ये मैं इसलिए बुल रन का टारगेट बोल रहा हूँ, नॉट ये एक मतलब स्कैल्प का टारगेट नहीं बोल रहा हूँ। बाकी सब मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको रहने दो, ये मैं लाइव में देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो मैं इसको अभी मैं फिर से अपना क्या करता हूँ, कैंडल पैटर्न बनाता हूँ, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ये आई थिंक 4 आवर का इम्बैलेंस बना के रखा है मैंने। ठीक है, हाँ 4 आवरली का इम्बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 4 आवरली का इम्बैलेंस है। तो जो रिटेस्ट की बात चल रही है वो इस 4 आवरली के रिटेस्ट में आ मतलब यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद फिर यहाँ से हमको एक पुश अप साइड दिखने के लिए मिल सकता है, इम्बैलेंस, सॉरी इम्बैलेंस। ठीक है, ये हो गया, ये सही है। ठीक है, ओके, तो ये था कहानी। बाकी वी शेप रिकवरी है बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे इम्बैलेंसेस के जोन छोड़ के गया है, और अगर वापस से एक पुल बैक आता है तो हमको ये सब एरियाज देखने मिल सकते हैं। ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये भी 2 घंटे का टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस जोन है। तो यहाँ तक आता है, हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमको जो फीवो लेवल है, ठीक है, फीवो लेवल हमको बॉटम से लेके हमको टॉप तक खींचना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली देखो पॉइंट कहाँ पे हमारा जो इम्बैलेंस के जोन है वो कहाँ पे गिर रहा है, लैग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक एरिया रहेगा, और ये परफेक्ट एरिया ये रहेगा गोल्डन पॉट का जोन। तो अगर यहाँ से एक पुल बैक आता भी है तो यहाँ से हमको एक फिर से एक बाइंग पोजीशन नए हायर हाइस के लिए हमको दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी बीटीसी की, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। प्लस यहाँ पे हमको डेली का एक इम्बैलेंस का जोन भी था जहाँ से परफेक्ट रिजेक्शन आया है। मैंने ऑलरेडी आपको ये जो एरिया था वो मैंने बना के दिया था आपको, और आपने अगर इसको मार्क करके काम किया होगा तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही होंगे। लेट्स सी 30 मिनट टाइम फ्रेम का, तो चलिए कहानी देखते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ ढंग का नहीं है और वीकेंड चल रहा है ना, तो इसकी वजह से अब मुझे नहीं लगता आज के दिन कोई ट्रेड मिलेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, कोई ट्रेड अगर बनता है तो बढ़िया से पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है बढ़िया से, रेड कैंडल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मैं आई थिंक डिलीट करता हूँ, और इस ट्रेंड लाइन को भी मैं डिलीट करता हूँ। बाकी देखते हैं यहाँ पे हमको नीचे कोई लेवल्स छूट गए हैं क्या, जहाँ पे फिर से बाइंग एक उठ सकती है, वो देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बना था, ठीक है, देखते हैं। हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, परफेक्ट है तो यही रहेगा। ठीक है, 30 मिनट में देखते हैं एक बार, 5 मिनट देखते हैं। स्ट्रेट जा रहा, स्ट्रेट यहाँ से पूरा कर्व लाइन बना के बढ़िया से इस तरीके से। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं हम, इसको ले लिया, इसको भी ले लिया, सारे एरियाज़ ये कवर करके गया एक्चुअली में। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ कि मैं इम्बैलेंसेस के जोन को देखता हूँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये इम्बैलेंस का जोन पेंडिंग है, बाकी सारे इम्बैलेंस के जोन फुल हो चुके हैं। ठीक है, बोल दे देते हैं। और बाइंग की सिनेरियो अभी इसी एरिया से है, इसी एरिया से छोटा सा बाइंग होगा। हालांकि अब अगर नज़र देंगे, ठीक है, ये एक इम्बैलेंस का जोन था जो यहाँ पे फिल होके गया है। ठीक है,
और देखते हैं, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इम्बेलेंस का जोन नहीं था अभी तो वो 15 मिनट में दिख जाएगा हमको, ठीक है। बाकी यहाँ पे इम्बेलेंस का जोन था जो फिल होके गया है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट में चले जाएंगे तो बढ़िया और दिखेगा। ये ऑर्डर, इसने ऑर्डर ब्लॉक का सहारा लिया है, ठीक है। तो अभी स्कैल्प के लिए मैं देखना चाहूँगा यही एरिया, क्योंकि ये सब एरिया, बाकी एरियाज फिल हो चुके हैं। उसके बाद कोई एरिया नहीं है, अगर मैं बोली हुई तो कोई एरियाज नहीं है बाकी, ठीक है। तो ओके ओके ओके, ठीक है, हमको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी एक बियरिश साइड का इम्बेलेंस है, तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहीं पर ट्रेड बना सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। फिक्स लॉट ऑलमोस्ट हम 1:3 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1:3 भी ले सकते हैं, कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन के ऊपर है कि अगर मार्केट यहाँ के रिएक्शन देता है देन हमारे ट्रेड बनेगा। क्योंकि आज के दिन इथेरियम का ट्रेड दिया था जो कि काम नहीं किया मतलब उसने वैसा रिएक्शन ही नहीं दिया और ऊपर चला गया, इसकी वजह से कोई ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो ये है बिटकॉइन का फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा एनालिसिस। कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा प्राइस एक्शन, जिसकी वजह से कितना वर्क करेगा आई डोंट नो। हायर है, मतलब हायर है का स्ट्रक्चर में ही है। अगर हम नज़र देते हैं यहाँ पे, मैं किससे दिखा, मार्कर से दिखा, देखो ये एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, देन अगेन हायर लो बनाया, ठीक है। जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे सेटअप बताया है। प्लस अगर आप नज़र भी देते हैं यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर कंटिन्यू ये क्या कर रहा है, एरियाज बना रहा है, मतलब प्राइजेक्शन इसका इस हिसाब से सही है, हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर में जा रहा है। बाकी यहाँ पे एक मुझे काइंड ऑफ यहाँ पे एक ये इस तरह का आके, अगर ये लिक्विडिटी लेता भी है तो सही है, नहीं लेता है तो डायरेक्टली फिर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है कि एक कैंडल रिजेक्शन वाला कैंडल यहाँ पे चाहिए मुझे, देन यहाँ पे फिर हम एंटर कर सकते हैं अपने ट्रेड सेटअप में। 1 मिनट में तो कुछ ढंग का नहीं रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी नहीं रहती है वीकेंड्स में, ठीक है। तो 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में चार्ट नहीं है सही, बस 5 मिनट में सही है, 5 मिनट के हिसाब से है, ठीक है। तो ये है बिटकॉइन का सेटअप। प्लस देखते हैं हम अब इथेरियम के बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम नज़र देते हैं 1 सेकेंड, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम मैंने खोल के रखा है, वीकली भी एक बार देख लेते हैं। वीकली में अगर हम नज़र देते हैं तो वीकली में यहाँ पे एक इम्बेलेंस का जोन बैठा हुआ है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। ओके ये है, नहीं ठीक है, ये था ना, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम में जाता है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो टारगेट मिल सकता है वो ऑलमोस्ट मिल सकता है 29-25 से लेके 31-41 का। तो अगर आपका ट्रेड बना हुआ है बिटकॉइन में, मतलब क्या बोलें, स्विंग ट्रेड बना हुआ है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी कर सकते हैं। बाकी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई सेटअप अगर हमको नज़र आ रहा होगा परफेक्ट। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, प्लस ऊपर में अभी 2 घंटे के हिसाब से यहाँ पे एक इम्बेलेंस का जोन बैठा हुआ है। चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये है 4 आवर्ली का, ठीक है। अब हमको 2 आवर में जाना है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये हो गया 2 आवर का, ठीक है। इसको मैं बेयर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है 2 घंटे का इम्बेलेंस, ठीक है। लिख देने से क्या है कि अच्छा है हमारे लिए, पता चलते रहता है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला है ना, ये है 4 आवर्ली का इम्बेलेंस, ठीक है, ये है 4 आवर का इम्बेलेंस, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट इथेरियम का पॉसिबल टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहना चाहिए वो रहना चाहिए ये एरिया। पहला है 25-35 से लेकर 25-53 का, और अगर 4 आवर्ली के हिसाब से देखें तो सेम ही एरिया है, ऑलमोस्ट ये एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया में हमारी प्रॉफिट टेकिंग रहनी चाहिए। और स्ट्रक्चर वाइज भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, अभी ये हायर हाई यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। तो फिर एक पुल बैक, फिर एक हायर लो हायर हाई, तो इस तरीके से कुछ एक सिनेरियो बन सकता है इन इथेरियम। और अगर ये पुल बैक आता भी है, अगर सबसे पहले डिपेंड करता है ये कैंडल कितना बड़ा बनाता है, ठीक है। बड़ा बनाएगा तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि ये इम्बेलेंस का जोन छोड़ के जा रहा है, तो वापस इस इम्बेलेंस के जोन में आके रीटेस्ट ले सकता है, देन फिर अपने ऊपर के जोन्स ये टैप कर सकता है। समझ रहे हो, स्ट्रक्चर सिंपल है,
गया आया गया आया, ये अभी जाएगा, मतलब ये छोटा सा ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने इस एरिया को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, तो एक नया हाई, फिर ये रीटेस्ट, फिर इस तरीके से कुछ सीन बन सकता है इन इथेरियम, ठीक है। वो भी 2 घंटे के हिसाब से। अब हम स्कैल्प की तरफ चलते हैं, स्कैल्प में देखते हैं कोई ट्रेड वेड बनता है तो बढ़िया से हम लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे लेवल्स बना के रखा है कि अगर पुल बैक आता भी है तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट जोन रहेगा, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि ये एरिया है 30 मिनट का, ये एरिया है 30 मिनट का इम्बेलेंस का जोन, और ये है थोड़ा बड़ा, ये है ऑलमोस्ट 1 घंटा या 2 घंटा का ये टाइम फ्रेम का इम्बेलेंस का जोन है। ये जो बड़ा वाला है ना, ये 2 घंटे का, और छोटा वाला है 30 मिनट का, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने बना के रखा है ऑलरेडी। एंड 30 मिनट में ऐसा कुछ प्रेडिक्शन है नहीं कि हम यहाँ पे ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मैंने मॉर्निंग में आपको एक सेटअप दिया था, इंस्टा में दे के रखा था मैंने, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ। अभी मुझे फिर देखना पड़ेगा कौन सा क्या सेटअप था, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये तो जब बनेगा कैंडल तब पता चलेगा। तो यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, फिर एक रीटेस्ट का मैं वेट करता कि रीटेस्ट आए तो हम फिर ऊपर की साइड मूव करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिंपल बढ़िया सा सेटअप था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट में सबसे पहले देख लेते हैं कोई लेवल छूट गया क्या यहाँ पे। अगर रीटेस्ट आता है तो फिर हम ट्रेड एंट्री बनाएंगे। एक ये है, एक ये है, 2 लेवल, ठीक है। बाकी अगर 15 मिनट में देखेंगे तो ये एक लेवल छूट गया, लेकिन अगर हम फिबो के हिसाब से देखें तो ये लेवल हमको देखना पड़ेगा कौन से जोन में गिरता है। डिस्काउंटेड जोन में गिरता है तो सही है, अभी भी ये लेवल परफेक्ट है अगर हम इसमें सेटअप बनाना चाहे तो। लेकिन इंस्टेंट अभी वीकेंड चल रहा है तो इतना फटाक से गिरेगा उम्मीद कम है, तो इसलिए हमको अलग ही सेटअप देखना पड़ेगा इसमें। 3 मिनट में चलते हैं, ओके। यहाँ पे हम बना लेते हैं, चलो छोटा सा स्कैल्प के लिए एरिया बन सकता है, ठीक है। फिबो लेवल खींच लिया हमने, उसके बाद सिंपली हमको खींचना पड़ेगा ये लेवल, बट ऑलरेडी टैप करके गया इसने, ठीक है। 1 मिनट में देखते हैं, नहीं है लिक्विडिटी नहीं रहती बिल्कुल, इसलिए दिक्कत हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। और इसको हम यहाँ खींचते हैं, ओके। एसआर लेवल भी है, ठीक है। तो फिलहाल तो यही लेवल मुझे नज़र आ रहा है, अगर हम स्कैल्प लेना भी चाहते हैं तो यहीं पे हम ले सकते हैं। एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे हमको कोई सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। ना, नीचे वाला इम्बैलेंस नहीं काम करेगा, यही काम करेगा। करने से यहीं से रिएक्शन मिलना चाहिए। प्लस अगर हम देखें, ये बेरिश सेट का इम्बैलेंस का जोन था, ठीक है। ये बेरिश सेट का इम्बैलेंस का जोन था, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो हो रही है वैसे, यहाँ पे देखेंगे तो परफेक्ट हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट यहीं पे बनना चाहिए, यहीं पे, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, तो रिस्क रिवार्ड ख़राब हो जाएगा। तो जितना नीचे मिल सके उतना बेटर है हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि रिस्क रिवार्ड थोड़ा ख़राब रहेगा। 1:2 मतलब 2 के लिए हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते, लेकिन जितना नीचे मिले, अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है ना एंट्री ये मिडिल में, तो रिस्क रिवार्ड थोड़ा काफ़ी सही रहेगा। बट ओवरलैपिंग हिसाब से तो हमको यहीं पे लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो हम 1:3 भी खींच सकते हैं नए हाइस के लिए, इस तरीके से, ठीक है। सो लेट्स वेट कि क्या करता है मार्केट इस एरिया में आके। बाकी बिटकॉइन का देखो आ रहा है, तो यहाँ पे हमको एक चाहिए रिजेक्शन कैंडल, ताकि हम इसमें बढ़िया से एंट्री बना सकें, ठीक है। बढ़िया से एंट्री बना सकें, बढ़िया से समथिंग, ओके। लेट्स सी, बिटकॉइन के हिसाब से इथेरियम भी वर्क करता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो बात करते हैं अभी हम फंडेड अकाउंट की। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फंडेड अकाउंट एक परचेज़ करूँगा, तो मैं इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैं खोल देता हूँ आपके लिए, ओके। ये खोल लिया, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है ब्लूबेरी को, इफ यू ऑलरेडी नो ब्लू, अबे क्या हो गया, BL, ओके, ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट,
ठीक है। तो इसका रीज़न सिंपल है कि अभी टॉप 3 में आता है। पहला है तो फंडिंग पिप्स, मुझे जहाँ तक लगता है। सेकंड में भी ब्लूबेरी हो सकता है, और थर्ड में भी मेरे हिसाब से मेवेन रह सकता है। ठीक है, तो ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट मुझे काफ़ी पसंद आया है, और ये ब्रोकर बैक्ड है, और साथ ही साथ पे आउट की इशू मैंने अब तक किसी से नहीं सुनी है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना फंडेड अकाउंट हम ब्लूबेरी से ही ले ले। फंडिंग पिप से भी ले सकते हैं, बट उसमें कूपन यूज़ नहीं होता है। इसमें कूपन यूज़ होकर थोड़ा सा अमाउंट छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लूबेरी का ही फंडेड अकाउंट एक परचेज़ करूँ लाइव में आके, और जो भी इसका अपडेट होता है वो मैं देने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे ब्लूबेरी का बहुत सारा इसमें आपको अमाउंट का अकाउंट साइज़ मिल जाएगा, जैसे कि हो गया $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, $1 लाख, $2 लाख। ठीक है, तो अभी फंडेड अकाउंट का मतलब क्या है कि आपको जो ये जो ब्रोकर है या जो भी फंडेड कंपनी है, फार्म है, उन लोग आपको उनका पैसा देते हैं ट्रेड करने के लिए, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस रखते हैं, ताकि आप अगर आपके पास स्किल है तो आप उन लिमिटेशंस के अंदर रह के प्रॉफिट जनरेट करके विड्रॉ लगा सकें। लेकिन उसके लिए आपको 2 फेजेस या फिर 1 फेज़ या फिर इंस्टेंट अकाउंट भी मिलता है। इसमें आई थिंक नहीं है, लेकिन किसी फंडेड फॉर्म में इंस्टेंट अकाउंट भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंट मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आप 2 स्टेप या 1 स्टेप अकाउंट की तरफ जाओ, और एग्ज़ाम पास करके फिर आप जो है ट्रेड लो, या फिर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है, मैं एक्चुअल में लूँगा $5,000 का अकाउंट, फिर देखते हैं धीरे धीरे हायर उसमें जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी बड़े फंड को मैनेज करने का नहीं है। इसकी वजह से मैं अभी इंस्टेंट बड़ा अकाउंट नहीं ले रहा हूँ, छोटा अकाउंट ही ले रहा हूँ। तो $5,000 का अकाउंट लूँगा, 2 स्टेप अकाउंट लूँगा, ताकि 2 स्टेप में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो, देन फिर मुझे फंडेड अकाउंट मिले। तो 1 स्टेप भी आप ले सकते हैं। 1 स्टेप में क्राइटेरिया क्या है कि एक स्टेप आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब आपको इवोल्यूशन फेज़ रहता है, यहाँ पे आपको मतलब दिखाना पड़ेगा आपका स्किल है कि नहीं है। उसके बाद फिर जैसे ही पास होता है फिर आपको रियल अकाउंट मिल जाता है $5,000 का। ठीक है, इसमें प्रॉफिट टारगेट रहता है 1 स्टेप अकाउंट में 10% का, मैक्सिमम लॉस रहता है 6% का, डेली लॉस रहता है 4% का, और प्रॉफिट शेयरिंग 80% रहता है। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज़ रहता है, और फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी 3 डेज़ रहता है। ठीक है, इसमें आगे बताऊँगा आपको। बाकी पे आउट फ्रीक्वेंसी रहेगा 14 दिन का, मतलब 14 दिन बाद आप लेते हैं तो 80% का आपको पे आउट प्रॉफिट शेयर मिलेगा। बाकी बहुत सारे इसमें प्रोज एंड कॉन्स है। बाकी इसका जो वैल्यू है वो है $40। बाकी कूपन लगा के मे बी शायद को $35 में आपको मिल सकता है, लेकिन मैं 2 स्टेप अकाउंट लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बाकी यहाँ पे इन लोग का कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ब्रोकर बैक्ड है, सस्टेनेबल इवोल्यूशन है, इलाइट ट्रेडिंग कंडीशन है, एफिशिएंट पे आउट है, 14 दिन में 80% मिल जाएगा, इन हाउस ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद का इनका MT5 का लाइसेंस लेके रखा है। बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो जिन लोगों ने पे आउट लिया उनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और क्या दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं अलग अलग लाइव में आके आपको सिंपली क्या दिखाऊंगा, इनके प्रोज एंड कॉन्स दिखाऊंगा। ठीक है, 2 स्टेप अकाउंट में लेना चाहता हूँ। 2 स्टेप अकाउंट में फेज़ 1 में मुझे 10% प्रॉफिट निकालना है, मतलब ऑलमोस्ट $500, और सेकंड फेज में 5% निकालना, मतलब $250 का मेरे को निकालना है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप जो है इतने दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट निकालना है, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कुछ आ रहा है क्या, ओके, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जितना दिन लगे, लेकिन इनका एक क्राइटेरिया क्या है कि अब 0.5% आपको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट बनाना पड़ेगा एक ट्रेड में या एक दिन में, देन आप एलिजिबल होंगे कि आपका एक दिन काउंट किया जाएगा। 3 दिन जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज बोला था, आपका एक दिन तभी काउंट होगा जब आप 0.5% प्रॉफिट निकालेंगे उस पार्टिकुलर डे में। ठीक है, ये इनका कंडीशन, आप सिंपली FAQ में देख लेना, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे भी मैक्सिमम डेली लॉस 10% है, एंड डेली लॉस 5% है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है 10%। मतलब आप अगर $5,000 का अकाउंट है तो आपको ओवरऑल आपको $500 का ही लॉस लेना है, उसके ऊपर लेते हैं आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और डेली का आपको 5% है, मतलब $250 का आप डेली का लॉस लिमिट है, उसके ऊपर अगर आपका जाता है डेली में तो आपका कैंसिल हो जाएगा अकाउंट, सिंपल। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं यहाँ पे बाकी सब सेम है। यहाँ पे लेवरेज भी देख सकते हैं, और अगर हम रीड मोर में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रीड मोर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम, मतलब कौन से ट्रेडिंग स्टाइल आपको अवॉइड करना है, जैसे कि एक्सेसिव स्कैल्पिंग नहीं करना, मतलब इंस्टेंट बाई के इंस्टेंट अपने 1 मिनट के अंदर ही ट्रेड क्लोज कर देते, तो वो इंस्टेंट बाई सेल नहीं करना है, एक्सेसिव स्कैल्पिंग में माना जाता है। बाकी मार्टिंगल में क्या होता है कि आपके पोजीशंस एक के बाद एक बनती है, वो चीज़ नहीं करनी है।
एंड और भी बहुत कुछ है इसमें, आप इसको चेकआउट कर लेना। फिर भी मैं आपको हर एक लाइव में आके बताऊंगा क्या क्या है। ग्रिड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऑल इन नहीं कर सकते। ऑल इन मतलब पूरा फंड आपने डाल दिया एक ही ट्रेड में और फिर जैसे ही लॉस होने लगा आपका अकाउंट उड़ जाएगा, तो वो चीज़ भी नहीं करना है, उससे भी अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ग्रिड ट्रेडिंग नहीं करना है, आपने पोजिशन बोले लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिए यहाँ 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 और फिर लग जाएगी। जैसे न्यूज़ ट्रेडिंग आई थिंक इसमें अलाउड नहीं है, मैंने जहाँ तक देखा, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली में। इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग मैं देख के बताता हूँ। ये रहा, डू यू अलाउ न्यूज़ ट्रेडिंग? नो न्यूज़ ट्रेडिंग पॉलिसी। यहाँ पे बस आपको क्या है कि न्यूज़ आने से पहले 2 मिनट पहले जो भी ट्रेड होगी या 2 मिनट बाद की जो ट्रेड होगी वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो न्यूज़ ट्रेडिंग ही कहलाती है, तो उसके हिसाब से क्या है कि आपको 2 मिनट पहले, मतलब आप अगर 5-10 मिनट पहले पोजीशन बना के बैठ गए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद की जो भी ट्रेड होगी वो आपकी काउंट नहीं होगी, ठीक है। बाकी बहुत कुछ इसमें देखना बाकी है, बस मैं इसमें जो है बाई करके और बैठना चाहता हूँ ताकि देखूँ कि फंडेड अकाउंट का भी क्या इसमें चक्कर है, ठीक है। और एक चीज़ था ट्रेडिंग कमीशन और ट्रेडिंग स्टाइल रूल, नहीं उसमें और एक था वो, लेट्स सी, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब पहले कुछ इसमें वो था मार्जिन रूल था, लेकिन मार्जिन रूल अभी हटा दिया इन्होंने, लेकिन उसके जगह में अलग कुछ दिया था। क्या दिया था? ट्रेडिंग ऑल कलेक्शन में देखते हैं, अबाउट पे आउट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जाके आप सारे क्राइटेरिया देख सकते क्या क्या है। ब्लूबेरी फंडिंग क्या है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या है, ठीक है। वीकेंड्स में होल्डिंग हो सकती नहीं सकती है, एंड एक्टिविटी। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ किस में था, मैं भूल गया। इसमें किसी में था गाइडलाइन में कि मार्जिन रूल समथिंग कुछ था। लेवरेज इंस्ट्रूमेंट रोल ओवर ट्रेडिंग स्टाइल रूल, ट्रेडिंग कमीशन, ट्रेडिंग बोर्ड, ये मैं आपको नेक्स्ट लाइव में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं अपना अकाउंट। तो यहाँ पे 2 स्टेप अकाउंट है, $5000 का अकाउंट है, यहाँ पे $35 दिखा रहा है। हम गेट फंडेड में क्लिक करते हैं, ठीक है। मुझे आई थिंक इसमें सही छुपाना पड़ेगा, ठीक है, छुपाना पड़ेगा एक सेकंड, क्योंकि मेरा उसमें एड्रेस निकल जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे हाइड करना पड़ेगा। मैं वो दिखाता हूँ। सॉरी क्या बोले यार, कट गया। अब मुझे दोनों फिर स्ट्रीम को कंबाइन करके एक वीडियो बना के डाल देना पड़ेगा यार, क्या बोले स्ट्रीम, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम थे ब्लूबेरी के अकाउंट परचेज में। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 स्टेप अकाउंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे $5000 सिलेक्ट करना है, MT4 MT5 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। बाकी 7 डे पे आउट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, $42 हो जाएगा। तो मैं इसको अनचेक करता हूँ कि मैं सस्ते दाम में अकाउंट परचेज करके फिर उसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कूपन आप यूज़ कर सकते हैं Money25 आप अगर चाहते हैं तो, जिसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट $28 का हो जाता है जो अकाउंट परचेज है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे $28 यहाँ पे परचेज अमाउंट हो चुका है। बाकी यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना अकाउंट डिटेल्स भर लेता हूँ, भरने के बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट परचेज का सिस्टम कर लेता हूँ पहले। क्या बात है बिटकॉइन, देखो एंट्री कैसी लगी बताओ, एंट्री धांसू लगी। ये तो आया नहीं, आ जाता तो फिर इसको इसमें भी धमाका हो जाता, बट आया नहीं, क्योंकि काइंड ऑफ मे बी एक ऐसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके गए, ठीक है। बट बिटकॉइन ने मज़ा कर दिया, हम लाइव आते ही ट्रेड देते हैं तो जैसा हमने बस दिल खुश हो गया, ठीक है। लेने नहीं हुआ क्योंकि मैं इधर फिर मेरा स्ट्रीम कट गया था बोल के मैं उसमें बिजी हो गया। बट जो भी है यहाँ पे हम फटाफट अपने अकाउंट डिटेल्स फिल करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके
होल्ड इट होल्ड इट। मतलब लाइव में आने से क्या है कि ये सब थोड़ा डिटेल छुपाने पड़ता है ना, इसकी वजह से मुझे साइड करना पड़ा, वरना दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिनट। ठीक है, उसके बाद ओके, पेमेंट परफेक्ट पेमेंट मैंने दे दिया है INR। तो इसको चलो मैं इसको काट देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ सो दैट ये ठीक है, ये मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे $28, बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे प्रीफर्ड पेमेंट करेंसी डालना है हमको INR, यानी यहाँ पे प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अगर हो सकता है तो दिखाऊंगा, क्योंकि कहानी क्या है कि डिटेल्स निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ एंड यहाँ पे INR सिलेक्टेड है, बाकी यहाँ पे टिक मार्क करना है एंड देन प्लेस ऑर्डर में क्लिक करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या दिखाता है। ठीक है, बाकी बिटकॉइन का ट्रेड आपने अगर लिया है मेरे साथ नहीं, मतलब मैंने तो लिया ही नहीं है, तो अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली आपको मुबारक। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आया है वो है पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे $28 का पेमेंट करना है, कार्ड से कर सकते हैं, क्रिप्टो स्टेबल कॉइन से कर सकते हैं, या फिर INR UPI IMPS से कर सकते हैं। मैं यही सिलेक्ट करूँगा IMPS, और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भर के फिर 2402 का अमाउंट मुझे पे करना है। ठीक है, तो वो हम पे करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अकाउंट डिटेल्स भर लेता हूँ। ठीक है, अकाउंट नंबर भी डालना है क्या? ओके, अकाउंट नंबर भाई डालना क्यों है, हमें तो UPI से करना है। वेट 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 वेट, ओके ओके ओके, यहाँ पे आया है, मैंने अकाउंट डिटेल्स भर दिया। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स भरने के बाद ये चीज़ है, तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट चैनल करना है। ओके, क्या है ये सब, बहुत सारा कुछ आया है, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो हम पे में क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ आया, देख सकते हो यहाँ पे पेटीएम, फ़ोनपे एंड UTR। और सॉरी, पेटीएम या फ़ोनपे से कर सकते हैं, इसमें QR कोड से वो कर सकते हैं आप, स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे UTR नंबर आपको पुट करके सबमिट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई थिंक फ़ोनपे सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे QR कोड आ गया अलग से, QR कोड हम स्कैन करके दे देते हैं। फ़ोनपे सेव द QR, क्या है, सेव द, click the button to save the payment QR or manually take a screenshot to save the QR। इसके बाद क्या है, ओपन फोन पे स्कैन द QR। ओके, डायरेक्ट स्कैन करते हैं हम। ओके, स्कैन हो गया, प्रोसीड टू पे एंड लेट्स पे इट। ओके ओके, क्या सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इन लोग नहीं दे रहे करने के लिए, ये क्या बात हुई भाई, करना है मुझे, व्हाट द हेल, क्या करें अब, इन लोग दे ही नहीं रहे मुझे। तो पेटीएम से सफारी के, अरे यार हद है ये तो, क्या मजा है, आई कांट पे विथ, क्या करें, नहीं दे रहा है ना, पेमेंट करने नहीं दे रहा है। आता है, GPay से मार के देखेगा, GPay में कोई UTR कोड आता है नहीं आता है, स्कैन आना तो चाहिए। कंटिन्यू, पेमेंट नहीं करने दे रहा है, ब्लॉक कर रहा है, अब क्या करे, अब क्या करे बेटा।
व्हाट द हेल, पेमेंट करने ही नहीं दे रहा है। वेट वेट, क्या करें, कहाँ गया है? ओके, पेमेंट करने नहीं दे रहा है, कांट डू एनीथिंग। यहाँ पे पेमेंट हो नहीं रही है। अब मुझे लगता है क्रिप्टो से करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तो हो नहीं रही है, यूपीआई से नहीं हो रही है। ठीक है, तो वही मेथड है, लेकिन यूपीआई से हो नहीं रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों ये लोग ट्रांजेक्शन करने नहीं दे रहे। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मुझे ब्लॉक कर दे रहा है, बट मे भी शायद कहीं पे कोई सेटिंग वेटिंग हो हटाने की। परमिशंस, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पता नहीं यार, अभी दे नहीं रहा हूँ तो मुझे अल्टीमेटली क्रिप्टो से सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं कर सकते इसके आगे में। ठीक है, तो फिर क्या बोले, और बाकी बिटकॉइन का ट्रेड काफ़ी बढ़िया था, 1:3 के आसपास गया। ठीक है, और इथेरियम का क्या बोले, इथेरियम का अभी भी चांसेस है, क्योंकि बोलेनान से इसने इस एमएलएस जोन को अब तक टैप किया नहीं है। प्लस नेक्स्ट एरिया रहेगा ये, बट ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पे पुल में आते फिर हम ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि इथेरियम का मॉर्निंग में भी सेटअप जो दिया था वो वर्क नहीं किया, सेम एज इट इज़ अभी भी सेम है। या मुझे लाइव में ट्रेड ये फंडेड अकाउंट लेना था, बट ले नहीं पा रहा हूँ, क्या कर सकते हैं अब। पेमेंट मेथड यूपीआई वर्क करना चाहिए था, क्या नहीं। कार्ड से तो ले नहीं सकते हैं, कार्ड से ले सकते हैं क्या? वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, ओके लेट्स सी। कार्ड से मैं लेना नहीं चाहता, मुझे यूपीआई एम पे से देखना है। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, ये क्या आ गया, ये नया आ गया UTR। ओके, इसको स्कैन कर देते हैं, खोल देते हैं। पेमेंट दे नहीं रहा है, हद है। नहीं दे रहे, डिक्लाइन कर रहा बार बार। अब ये भी नहीं होगा काम, अब किससे दे यार? जीपे, जीपे लेट्स सी, जीपे से देखते हैं। नहीं दे रहे किसी भी, यार क्या बोले, 2 से नहीं दे रहे तो बैग जाते हैं, रुको। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, मैं इसका अपडेट दे दूंगा अपने इंस्टा में। डू लेट्स चेक दिस आउट बेबी। क्या बोले यार, फंडेड अकाउंट लेना है बट नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस स्ट्रीम को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। रीज़न सिंपल है, मेरा मकसद था कि मैं आके लाइव में
फंडेड अकाउंट लूँ, लेकिन यूपीआई पता नहीं क्यों वो रिजेक्शन दे रहा है बार बार। ठीक है, पेमेंट नहीं ले रहा है, तो मैं देखता हूँ किस तरीके से मैं पेमेंट लेता हूँ, मतलब पेमेंट दे के फिर फंडेड अकाउंट लेता हूँ और उसका अपडेट मैं डाल दूँगा इंस्टा में, तो इंस्टा को डेफिनेटली फॉलो कर लेना। बाकी बिटकॉइन का ट्रेड आपको कैसा लगा बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बढ़िया ट्रेड था, एकदम एग्जैक्ट हमारे पिन पॉइंट में आया और यहाँ से एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है और बुलिश कैंडल बनाया, प्लस अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मे बी यहाँ पे हमको एक बढ़िया एक इम्बेलेंस का जोन दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वापस से यहाँ से एक रिजेक्शन आता है और एक फिर हमारा अपसाइड का ट्रेड बन जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो अच्छा ट्रेड था ये, बढ़िया ट्रेड था। हालांकि मेरा नज़र नहीं था क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट परचेस करने के चक्कर में था, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था। और एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ से चाहिए मुझे, ताकि हम फिर एक बढ़िया सा फिर से ट्रेड बना सकें। ठीक है, तो आज का लाइव यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ फिर मंडे को। पहले मैं फंडेड अकाउंट परचेस कर लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ मंडे को। क्या हो गया एंड ठीक है, तो मज़े करो, वीकेंड के मज़े करो। बाकी तो और क्या बोले, प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ फंडेड अकाउंट लेने का। ठीक है, मेरा पता नहीं क्या हो रहा है पनौती, बट जो भी है मैं लेके इंस्टा में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट। ओके, बिटकॉइन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक हम छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, छोटा सा ट्रेड विद छोटा सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी अराउंड 1:2 1:3 टारगेट तो उठा सकते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रहेगा, इस बड़े बुलिश कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। बस सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड नहीं है, सिंपल ट्रेड है, छोटा सा स्टॉप लॉस छोटा सा टारगेट, बढ़िया है। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।